लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स मेक बयानबाजी में आइए सुनते हैं कुछ अहम बयान। राजस्थान में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में आज विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले ही नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा चुके थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोरी ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गया। अब तो इस्तीफा लेके रहेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को नीट एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट को फ्री बस यात्रा की घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हेलो बच्चों, बेस्ड ऑन योर सजेशंस, पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक द बस सर्विसेज फॉर ऑल नीट स्टूडेंट फ्री ड्यूरिंग जून 2022। अब मन लगाकर तैयारी करो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप में से कई लोगों ने मुझे लिखा था कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि पेपर वाले दिन अपने घर से सेंटर तक जा सकें किराया देके। तो आप लोगों ने इस बारे में कहा था कि अगर कुछ मदद हो सके तो आज मैं पंजाब आया हूँ। पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब से मैंने इसके बारे में जिक्र किया। वो मेरे साथ ही बैठे हैं, वो आपको इस बारे में खुशखबरी देंगे। हेलो जी, सारे नीट दे पेपर देने वाले बच्चों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ क्रैक करना बड़ा अच्छा सुपना है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਣ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ 20, 21 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਓ ਸੈਂਟਰ, 21 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 21 ਨੂੰ ਜਾਓ, 22 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ। ਆਪਣੇ पेरेंट्स दा, अपनी स्टेट दा, अपने देश दा नाम रोशन करो। गुड लक, ऑल द बेस्ट। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मौजूदा आर्थिक हालात पर, ग्लोबल सिचुएशन पर कहा कि सरकार की इस स्थिति पर नजर है और हम इस मुश्किल समय में भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमने भारत के लोगों से अपील की है कि वे अपने खर्च या उन उत्पादों के बारे में ज्यादा सावधान रहे जो आयात पर निर्भर है। We are monitoring the situation. All the various arms of government are working as a team. Several steps are under consideration. The situation is globally quite challenging, but we have the confidence and the courage of conviction that we'll come out winners even in this challenging time. Sir, are you ready to cut down non-essential imports? No such plans of that sort right now. But we have, of course, made an appeal to all the citizens of India to be more conscious about their spending on products which are import dependent. And I think it's just very natural that every Indian who trusts Prime Minister Modi has taken cognizance of that and is helping the country in every small or big way with their own actions. I'm really proud of every Indian who has taken Prime Minister Modi's appeal to heart and is contributing to nation building. Sir, anything on the non-essential imports also, sir? GCC, FTA talks delayed due to the current gestation prices. No, when we launched itself, if you recall, we had said that the first round of talks will happen in the second half of 26. So we will have it as scheduled.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मेलोनी को मेलोडी देने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश की जनता से आर्थिक हालात का हवाला देकर विदेश यात्रा कम करने की अपील करते हैं, लेकिन खुद इटली जाकर पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी देकर रील बना रहे हैं। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया, 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि राजीव गांधी के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई सपने थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को 18 वर्ष की आयु में मतदान करने का हक दिया था। गहलोत ने कहा कि आज राहुल गांधी युवा नेता के रूप में देश को आगाह करते हैं, यह उनका कर्तव्य है और वे इसे निभा रहे हैं। राहुल गांधी की भावना है कि देश एक और अखंड रहे। उस जमाने में पहली बार 21st सेंचुरी की बात करी थी। 21वीं सदी आने वाली है, तब तक पूरे मुल्क के नागरिकों को अपना आप को तैयार करना चाहिए, जिससे कि नई शताब्दी में प्रवेश करें तो हिंदुस्तान भी दुनिया के दूसरे मुल्कों के श्रेणी में आ सके। ये उनका सपना था। विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सोशल मीडिया में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक सपना था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, पार्टी में विरोध के बावजूद भी दिया। एक सपना था कि युवा पीढ़ी ही आने वाले कल के भारत की निर्माता बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस रही नहीं जो आजादी के समय थी, यह माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह नेता प्रतिपक्ष की नहीं हो सकती। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये पहले से तय है। कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं, ऐसा मत सोचिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर, और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था। अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया। ये केवल चाहे बांग्लादेशी मुसलमान क्यों ना हो,
उसी की बात। और मोदी जी को जितना गाली इनकी मां ने कहा, हत्यारा कहा, खून का सौदागर कहा, इन लोगों ने क्या नहीं कहा, नाली का कीड़ा कहा, जितनी गालियां देंगे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को उतना अधिक प्यार करेगा। भाजपा नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब देश में यूपीए सरकार थी तब इटली से भारत को सिर्फ घोटाले और 3,600 करोड़ की लूट मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत की ओर भरोसा से देख रही है। जी, जब आपकी यूपीए की सरकार थी तब इटली से भारत को मिला क्या था? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 3600 करोड़ की लूट, ताबली बचौलिए और कांग्रेस की दलाली। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी इटली के साथ भारत ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। कांग्रेस इटली से स्कैम लेकर आई थी, भ्रष्टाचार लेकर आई थी। मोदी जी ने भारत को इटली की साझेदारी दी है। फर्क साफ है। एक जमाने में इसी इटली का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं पर माथे पर पसीना आता था। राहुल जी, क्रिस्टियन माइकल याद है या भूल गए? आज उसी इटली के साथ भारत ने 1700 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर, रक्षा, कृषि, शिक्षा और खनिज क्षेत्र में समझौते हुए। राहुल जी, पेरिस हो, बर्लिन हो, लंदन हो या अब रोम या दुनिया का हर बड़ा देश या हर महाद्वीप भारत की तरफ झुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा नशे की तरफ ना जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे युवा की दिशा बदले और वे रोजगार की तरफ जाएं। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी जरूरी है। निश्चित रूप से मैंने आज सभी वर्गों से बात की है, हमारे युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, किसानों से बात की है, और हम चाहते हैं कि युवा हमारा नशा की तरफ नहीं जाए। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन हम सामाजिक रूप से पूरी तरह से हमने सभी ग्रुपों में बात की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवा की दिशा बदले और वो अपने रोजगार की तरफ आकर के अपने जीवन को, स्थानीय लोगों का भी सहयोग जरूर, सभी स्थानीय लोगों का सहयोग हमने कहा है, और हमने एक ये भी कहा है कि सभी सहयोग करें पूरा उसमें, और नशे की आदत से। भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वे हताशा में आ गए हैं और इतने हल्के स्तर के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। जब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी को जनता ने ठुकरा दिया, तब से वो इतनी हताशा में आ गए हैं, इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किसी मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। वो इतनी घटिया शब्दावली उपयोग में लेने लग गए हैं कि जिसके लिए निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। अभी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस शून्य पर आ गई, तमिलनाडु में मात खा गई, शून्य पर आ गई, पुडुचेरी में हारी, और हिंदुस्तान के नक्शे पर जहां कहीं भी देखो कांग्रेस बहुत नीचे स्तर पर आ गई है, और इसके नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसे कुएं में भांग पड़ गई हो, इसी प्रकार से अपने अपने वक्तव्य देते जा रहे हैं और उनकी शब्दावली घिरती जा रही है। क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। और लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जब जब ये नीचे स्तर के, हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करते हैं तो देश की जनता इनको चारों खाने चित्त कर रही है। बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।